Thoughts on classism in our society. Hi, Mr. Akram. This is ABC from Delhi, India. I found your channel through a WhatsApp clip that was being shared in my family WhatsApp group. It was about the problems Indian students are facing in Canada. Wow. वैसे ये WhatsApp की virality is something else, by the way. If you make it to WhatsApp, you're so my good friend, his father was a very very high ranked official in the Pakistan Navy. He's retired now. So my friend tells me कि my metric of your videos कि ये वीडियो कितनी अच्छी चली है determines on the fact कि उनके जो generals का जो WhatsApp ग्रुप है उसमें वीडियो आई है कि नहीं. अगर उस ग्रुप में आ गई that means it's a hit video. So yeah, WhatsApp की बड़ी गेम है. आई नो फॉर अ फैक्ट कि कुछ लोग जो कि वैसे ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हैं वो खुद से ही उसका व्हाट्सएप वर्जन भी बनाते हैं और वो ग्रुप्स में शेयर करते हैं. आई नो व्हाट्सएप में कोई मोनेटाइजेशन नहीं है बट इट लीड्स टू एसेंशियली इट लीड्स टू मोर सब्सक्राइबर. अब जैसे ये ईमेल आई है सो आई एम श्योर इन्होंने सब्सक्राइब भी किया होगा. सो लोग इस तरह सोचते हैं यार व्हाट्सएप पे वीडियो सर्कुलेट करने से जो है व्यूज़ मारे जाते हैं या मेरा वो मोनेटाइजेशन अच्छा हो सकता था. बट दिस इज़ फॉर द क्रिएटर्स. खुद ही फैला दो व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे शेयर करो और अगर इट कुड लीड टू न्यू सब्सक्राइबर्स रादर देन कि कोई और आपका वीडियो ऐसा चॉप करे जिसमें आपका नाम ही नहीं पता. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो मी बाय नेम. यू नो व्हाई? बिकॉज वो मेरे चैनल पे नहीं है, मैं उनके व्हाट्सएप पे हूँ और जो व्हाट्सएप का वर्जन जा रहा है ना वो क्लिप यहाँ से भी कट रहा है यहाँ से भी कट रहा है. सो दे डोंट नो हु दिस गाय इज. दे कॉल मी ओ खल्ली बल्ली जा रहा है यू नो. तो उसकी वजह ये है कि मेरा कोई फ़नी पार्ट किसी वीडियो में, कोई 10 मिनट की वीडियो है उसमें 3 मिनट का फ़नी बिट था तो वो काट के, जैसे आई रिमेंबर कोरोना वाले टाइम पे बहुत सारी थी वैक्सीन से रिलेटेड थी तो वो वैक्सीन वाले चंक्स काट के वो बहुत वायरल हुए. वो इंडिया में भी बहुत वायरल हुए थे. तो वो अगेन पीपल डोंट नो कि यार ये बंदा कौन है क्योंकि हर वक्त तो स्क्रीन पे नाम नहीं आ रहा होता. सो इससे पहले कि लोग आपका एडिटेड वर्जन काट के फैला दें जिसमें आप मशहूर भी हों लेकिन किसी को पता भी ना हो, बेहतर है आप अपना वर्जन खुद काटें, उसमें आपकी डिटेल्स नीचे मेंशन हो कि इंस्टाग्राम हैंडल ये है, यूट्यूब ये है, सो दैट पीपल माइग्रेट टू योर चैनल. ओके, इट्स बीन अ वीक दैट एंड आई एम एब्सोल्युटली हुक्ड ऑन योर चैनल. आई एम स्टिल अ फेयरली न्यू व्यूअर सो आई एम नॉट श्योर हाउ इट गोज विद यू पिकिंग अप क्वेश्चंस. वाओ, यू आर लकी. But I want to share an incident in my extended family that happened recently. In February of this year, my cousin's sister got married, and during the ceremony, something happened which created a big mess on such an auspicious day. When the barat was at the door, all of us sisters were waiting for the groom to get in. Just then, we heard someone shout and hit someone. It turned out that one of the groom's uncle had slapped a man who was playing the trumpet in the band. It turned out that due to one particular day being auspicious, there were multiple weddings, and due to a shortage of men who play instruments in the band, one of the men who was one of the men was playing a fake trumpet and just acting so to collect money as the band had charged us per person. So यानी एक बंदा लेकर आए, वो बजा ही नहीं रहा था, बस वो एक्टिंग कर रहा था ताकि जितने ज़्यादा बंदे होंगे per person ज़्यादा पैसे मिलेंगे. Anyway, while I agree that what the members of the band were doing was wrong and fraudulent, in no way do I support a well-dressed, so-called educated, privileged man beating someone just because he can. I was so put off by this that I didn't even feel like participating in activities that all my other sisters participated in, like Juta Chupai, etc. Why is our society so classist? Instead of this problem reducing because of rapid growth in India, it seems to be magnifying more and more. Every day there is some rich person flexing his money and muscle and crushing the poor of this country. I hope you are aware of the 17-year-old who killed someone in his Porsche, and the whole system was defending the guy from replacing the blood samples of the drunk teenager to him being asked to write an essay on the accident as part of his bail agreement. How is this any different from the British Raj that we were so confidently referred to as the pre-independence era? I want to know your opinion on this. Big fan from India. Thank you so much. Thank you, Ji. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप से यहाँ माइग्रेट करने का 99% लोग जो हैं बस उसी पे देख के कहते हैं चलो जी हो गया. अच्छा, बहुत कम होते हैं हु एक्चुअली मेक एन एफर्ट कि यार ये बंदा कौन है, आई नीड टू फाइंड आउट, एंड देन दे लुक अप एंड सब्सक्राइब. एंड नॉट ओनली यू डिड दैट, यू ऑल्सो फाउंड आउट द क्वेश्चन. यू नो व्हाट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑन माई आस्क गंजी स्वैग के कॉमेंट सेक्शन? वेयर टू सेंड एन ईमेल. It's bloody written in the description of every episode since day one. मगर लोग पीपल जस्ट डोंट लुक अप कि यार मैं मोर पे दबाऊंगा तो नीचे सारा आ जाएगा. सो या इट्स सैड. सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द फैमिली.
सेकेंडली ये जो आपने लिखा, इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट. सो बेसिकली शादी हो रही थी और कोई शादी सीज़न में ज़ाहिर है शॉर्टेज हो जाती है, तो कोई बैंड वाले आए हुए थे और उनमें से एक बंदा फेक ट्रम्पेट बजा रहा था और फिर उसको एक अंकल जी ने बड़े ज़ोर से चमाट मारा और बड़ी बदमज़गी हुई. आई रिमेंबर सो मैनी इवेंट्स लाइक दीज, नॉट जस्ट इन माई फैमिली बट ऑल्सो इन माई पुराना नेबरहुड, जहाँ पे रंग में भंग डालना बहुत ज़रूरी समझा जाता था. बिकॉज अगेन वही जो पहली ईमेल आई थी, वो जो नागिन डांस वाली कि लाइफ ऑफ द पार्टी. सो हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ा अलमिया है, प्रॉब्लम है कि हमें जो है थोड़ा अपना आप को दिखाना है, स्पेशली इन अ सेटिंग जहाँ पे 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग हैं. सो आई हैव टू बी लाउड, आई हैव टू बी ऑब्नॉक्शियस. जैसे कि पाकिस्तान में देयर इज़ अ कल्चर, देयर इज़ ऑलवेज दिस वन अंकल जो कि शादी में जहाँ से खाना आ रहा होता है ना, पीछे बैग पे जहाँ एक मिनी किचन बनाया होता है, वो वहाँ पे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से ये करो, ये नहीं करो, ये. नोबडी डेजिग्नेटेड हिम. आई नो सो मेनी अंकल्स इन माई फैमिली जो कि खुद ये रोल ले लेते हैं. ठीक है, कुछ लोगों को शौक होता है मैनेजमेंट का वगैरह वगैरह, बट वो फजूल के चौधरी पनाना हमारे अंदर है. एंड इट्स अ वेरी साउथ एशियन प्रॉब्लम कि जहाँ पे आप किसी को थोड़ी सी पावर दे दो ना, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, वो खुदा बनने की कोशिश करता है. इट स्टेम्स फ्रॉम चौकीदार से लेके द हुज हु ऑफ द कंट्री. जहाँ उसको थोड़ी पावर मिलती है वो आंखें पलट लेता है अपनी, वो अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझता है. आई हैव हैड सो मेनी एक्सपीरियंसेस लाइक दिस यहाँ पे पाकिस्तान में भी, जहाँ पे एक बंदा है जहाँ उसको लगा कि मैं उससे पोलाइटली बात कर रहा हूँ. अच्छा, पोलाइटनेस को यहाँ पे समझता है कमज़ोरी है, वीकनेस है कि ये डर रहा है मुझसे. फॉर एग्जाम्पल ये पीछे रोड पे आई वॉज विद माई टीम, हम लोग एक शूट करके वापस आ रहे थे. एक रोड जो कि पहले ही बहुत नैरो है, उस पे अब एक बिल्डिंग भी बन रही है. सो जब बिल्डिंग बन रही है तो उसका सीमेंट सरिया सब सड़क पे है, राइट. तो वो और नैरो हो गई. अब उस पे लोग रॉन्ग वे भी आते हैं तो वो और नैरो हो गई. तो चूंकि यहाँ पे रॉन्ग वे का बहुत कल्चर है, थोड़ा आगे जाके यू टर्न लेके सीधा काम नहीं करेंगे, उल्टा काम करेंगे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे थोड़े बैरियर लगा दिए कि रॉन्ग वे वाले ना आए. अब लोग उस बैरियर से भी रॉन्ग वे आते तो वो और नैरो हो गया. यू गेट इट. वो पहले ही बहुत छोटी सड़क है, इट्स हार्डली 2 लेन्स, उसमें भी अब आप देख रहे हैं कितने ऑब्स्टिकल्स हैं. सो एक सामने से गाड़ी आ रही थी और तो जैसी गाड़ी मेरे सामने आई, क्लियरली ही वॉज रॉन्ग और उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था, राइट. अब देखो मेरी गाड़ी में तो एसी लगा हुआ है, टेम्परेचर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ 18 डिग्री और मैं ठंड में बैठा हूँ. बट व्हाट अबाउट द गाय ऑन अ बाइक, व्हाट अबाउट द गाय ऑन अ रिक्शा, या कोई डोंगी कार्ट चला रहा है, या कोई हाथ की गाड़ी मतलब ठेला चला रहा है, वो गर्मी में इतना ये वो, सबका ट्रैफिक जाम है, सबका वक्त बर्बाद हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है. तो मैंने उसको बोला कि रॉन्ग क्यों आ रहे हो. तो उसने मुझसे बदतमीज़ी से बात की. तो फिर मैंने आगे से उसको बड़ी वाली गाली दी. तो उसने बोला सर मैं थोड़ा सा यूँ. सो जब मैंने उसको दिखाई ना तो वो सीधा हो गया. सो जब मैं उससे पोलाइटली बात कर रहा हूँ, उससे बोला कि हाँ आई कैन फक हिम ओवर, बट व्हेन आई गॉट लाउड तो वो सही हो गया. तो यहाँ पे लोग ना सही और गलत नहीं, पावर और द लैक ऑफ पावर, दैट्स द रूल, इसको देखते हैं और इसी इसी तरह ऑपरेट करते हैं. सो सिमिलरली ये अंकल्स का बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने जो किचन स्टाफ है उसको गालियाँ देनी हैं कि ये देख, और उनको ये होता है कि जी ये खाना चुराएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अब ये गरीब है, वैसे ही तुमने इतना खाना ज़ाया करना है, अगर वो 2 बोटी साइड में बैठ के खा लेगा तो क्या हो जाएगा. लेकिन नहीं, दिल छोटे हैं हम लोगों के, तो जी हमने नज़र रखनी है, चोरी करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे. अच्छा जी. सिमिलरली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फाइट्स हैपनिंग, जैसे आपने बैंड वाले बोला इसी तरह की, कि शादी में बदमज़गी क्रिएट करना. अब जिसका इवेंट है, जो फैमिली है, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, दे गेट नॉट जस्ट अनॉयड बट दे ऑल्सो गेट स्केयर्ड कि यार यहाँ लड़ाई क्यों हो रही है, किसी ने ज़्यादा पी ली, गाड़ी मार दी. आई रिमेंबर तंबू में गाड़ी घुसाई थी क्योंकि दूल्हा मियाँ खुद ही पी कर आ गए थे, तो फिर उसको मारा. जिसकी शादी पहले वो पिट रहा है. तो मैं यही सोच रहा था कि यार अब जब ये लड़की लेके जाएगा तो ये उसका क्या हाल करेगा कि तेरे बाप ने मुझे मारा कैसे वहाँ पे. एनीवे, सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दोस फाइट्स जहाँ पे उन्होंने देखना होता है कि यार आई नीड टू मेक अ स्पेक्टिकल एंड आई नीड टू थ्रो इन पावर, आई नीड टू शो पावर एंड आई नीड टू शो हु इज़ द बॉस.
तो ये हमारे अंदर बहुत है। और गरीब को मारना कोई मसला नहीं है, कुछ क्या कर लेगा गरीब, कुछ भी नहीं कर सकता। फिर एक हमारे यहाँ ये भी है कि जस्ट बिकॉज मैंने सूट पहना हुआ है सो आई हैव अथॉरिटी ओवर यू, अगेन इट्स वेरी कॉलोनियल माइंडसेट। अच्छे कपड़े, अच्छे जूते या बड़ी गाड़ी, जिसकी बड़ी गाड़ी है तो वो ज़्यादा जो है अकड़ से कर रहा है। अब ये बैंड मेंबर जो है, अब मुझे समझ नहीं आता, लोग शादी पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अगर एक बैंड मेंबर है वो पर मेंबर 500 रुपये मांग रहा है, 1000 रुपये भी ले रहा है, आपका क्या जा रहा है? और वो ये भी नहीं कि दूल्हे का बाप, उसका भी कोई अंकल, अंकल तेरी जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो तुझे क्यों बनना है सीआईडी का एसीपी प्रदुमन कि तूने बहुत बड़ा क्राइम जो है ना यहाँ पे अनकवर किया है कि ओहो ये देखो धोखा हो रहा था हमारे साथ। तो ठीक है यार, खुशी का मौका है, 2-4 पैसे वो भी कमा लेगा, थोड़ी रोटी खा लेगा। अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, यू नीड टू पॉइंट इट आउट कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग एंड दिस इज़ नॉट ओके, या मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। बट ये मारना मूरना गालियाँ देना, दिस इज़ नॉट द वे टू एड्रेस थिंग्स। बट अगेन बिकॉज वी नो वी कैन गेट अवे विथ थिंग्स, वी डू इट। आप यही देखें, इसका एक बहुत अच्छी मिसाल है, वो जो 2 पाकिस्तानी अंकल लंदन में लड़ रहे हैं, आई एम नॉट फकिंग यू, आर फकिंग यू मदर फकर, वो जो रोड रेज एक हो रही है जो बड़ा मीम भी बना। अगेन शुरू में मैंने कहा एक बार आप मीम बन गए फिर इज नो गोइंग बैक, और वो मीम तो मशहूर भी गोरों में हुआ बिकॉज इट्स इन इंग्लिश, तो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, और वो फिर आप जैसे देख रहे हैं दुनिया भर में चला। अब वो अंकल अशेम्ड तो होते ही होंगे ना कहीं फैमिली सेटिंग्स में। अगेन वहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को हाथ नहीं लगाया, वाई? बिकॉज एक तो ये वाले अंकल रिकॉर्ड कर रहे थे, दैट कैन लीड हिम टू जेल, और दूसरा वहाँ हर जगह कैमरे लगे होते, तो वहाँ फिजिकल ऑल्टरकेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता अनलेस समवन लूजेज देयर माइंड, बट उसके रिपरकशंस होते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे कोई कानून वानून इतना सच है नहीं, जैसा आपने कहा वो पोर्शा से उसने 2 बेचारे यंगस्टर्स ही मार दिए, तो कोई टेंशन ही नहीं है बिकॉज उसके पास पैसा, ही कैन गेट अवे विद दैट। बट वो तो मीडिया में इतना उछला, इंटरनेट पे इतना उछला, तो आज जिन्होंने ब्लड सैंपल चेंज किया, ये सारे जितने लोग इन्वॉल्व थे, देर ऑल इन जेल, आई गेस सो। मुझे करंट डेवलपमेंट्स नहीं पता उसकी, लेकिन यही कि अब यहाँ पे भी इस तरह के एवर सिंस दैट पोर्शा सीन कर लाहौर में 2 वाक़या हो चुके हैं जहाँ पे अंडर एज बच्चों ने लोग मारे हैं। एक तो एक खातून की भी डेथ हुई है, वो लिटरली बाहर वॉक कर रही थी और एक गाड़ी यही मार के चलेगी, अंडर एज ड्राइवर। बट यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, कैमरे पे भी चीज़ हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज़ फॉर सेल यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। सो ये जो मारने मुरने वाला सीन है, क्या आई एम अथॉरिटी ओवर यू, not only it's classist money wise but deep rooted जो है the caste system is also a problem। पिछले दिनों मैंने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये सफाई का इशू था, और आई हैव मेड काउंटलेस वीडियोस अबाउट दैट कि साउथ एशिया फॉर सम रीज़न इज़ वेरी डर्टी। आप मोरक्को से लेके ईरान तक आ जाएं, एवरी कंट्री रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो रिच कंट्री है या पुअर कंट्री, दे आर सुपर क्लीन लाइक अ विसल। But you come to Pakistan, India, Bangladesh, they are dirt bags। तो उस पर एक बहुत अच्छा कमेंट था, and I think it was the comment of the year। और वो he narrowed it down very well। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सफाई का इशू इसलिए है बिकॉज इट्स अ कास्ट थिंग, कि भाई लोअर कास्ट वाले ने सफाई करनी है, अपर कास्ट वाले ने तो गंद करना होता है। और बिकॉज इसको अछूत समझा जाता है कि हम तो कचरे में हाथ, जैसे पाकिस्तान में सैनिटरी वर्कर का जो हायर होता है उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है नॉन मुस्लिम ओनली, तो या तो वो कोई क्रिश्चियन करेगा या वो कोई हिंदू करेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो गटर में हाथ ही नहीं डाल सकता, राइट? ये एक है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ये कास्ट सिस्टम बनाया हुआ है। इंडिया में, बांग्लादेश में अलग कास्ट सिस्टम एक चलता आ रहा है सदियों से। एंड अ लॉट ऑफ दीज रिलीजन्स दैट केम टू इंडिया, वो इसी बात पे उनका सेलिंग पॉइंट ही यही था कि भाई हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है। इस्लाम का भी यही था, सिखिज़म का भी यही था, कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं, यू कैन कम ओवर हेयर। एंड अ लॉट ऑफ दोज पीपल हु वर फ्रॉम द लोअर कास्ट माइग्रेटेड सोली बिकॉज कि यार एटलीस्ट हम इक्वल तो होंगे। वो अलग बात है कि फिर यहाँ आके पता चला आप तो सैयद तो हो ही नहीं, ओहो हो, दैट्स अ प्रॉब्लम ब्रो। या फिर ये कि दूसरे ने बोला अच्छा आप हो तो गए हो लेकिन आप वो वाले नहीं हो, अभी भी प्योर ब्लड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो अब कोई नॉर्वेजियन है ना, वो ये सोच के सफाई नहीं करता कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो डेनिश का काम है, या ये जो है ना मैं तो वाइकिंग ब्लड हूँ या ब्लू ब्लड हूँ। वो कहते हैं यार हम सब का काम है, इसलिए वो कंट्री साफ़ है जहाँ पे वो कहते हैं इट्स ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हमारे यहाँ कोई पैसे वाला है, एंड आई हैव सीन इट
काउंटलेस टाइम्स, और आपने भी देखा होगा, बड़ी सी गाड़ी होती है, उसका शीशा खुलता है, अंदर से कचरा गिरता है मेन रोड पे, नॉट इवन लाइक कि चलो कोई साइड वाला रोड है, नो बडी इज वॉचिंग, आप मेन रोड पे एवरी वन इज देयर शेमलेसली, बिकॉज दे बिलीव हम तो बड़ी गाड़ी वाले हैं तो हम थोड़ी साफ़ करते हैं, साफ़ तो हमारी मासी करती है। अच्छा, मासी में एक कन्फ्यूजन रहती है, इंडिया में मासी खाला को कहते हैं और यहाँ पे मासी काम वाली को कहते हैं, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैंने इसे मासी मौसी नहीं कह रहा, मैं मासी कह रहा हूँ। अब ये कहाँ से डिराइव हुआ, ये चेंज क्यों हुआ, इस पर अगर किसी को कुछ पता हो तो कमेंट कीजिएगा। सो इट्स अ, लाइक आई सेड, इट्स अ, सफाई का इशू भी इट्स अ क्लास थिंग, कास्ट वाला इशू है कि यार ये तो हमारा काम नहीं, तो छोटे वाले का काम है। सिमिलरली इफ़ आई हैव 4 पैसे मेरी जेब में, या मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, सो आई हैव द राइट टू फक ओवर एनी वन, एंड दैट पर्सन हैज़ नो वॉइस, उसकी कोई सुनेगा भी नहीं। वो थाने जाएगा, थाने वाला 2 चप्पड़ मारेगा कि तू यहाँ आया क्यों, हमारा टाइम ज़ाया करना है। एंड सेम गोज फॉर इंडिया। आई सी शोज लाइक मिर्ज़ापुर, सेक्रेड गेम्स, या पाताल लोग, एंड व्हेन आई सी पुलिस आई लाफ कि यार इट्स एग्जैक्टली लाइक अस। लापता लेडीज़ में वो जो पुलिस वाला था, या आई लाफ्ड सो मच, ही वाज सच अ वंडरफुल कैरेक्टर, वो टिपिकल बिहारी बिहारी गाय, पान चबा रहा है, और जो है जिस तरह वो डील कर रहा था यहाँ पे एग्जैक्टली। आई रिमेंबर आई गॉट मग्ड 28 दिसंबर 2007। मुझे डेट क्यों याद है, क्योंकि 27 दिसंबर को बेनज़ीर गॉट शॉट। तो अगले दिन, बिकॉज आई वॉज अ वर्कaholic, पूरे मुल्क में आग लगी, मैं काम करने चला गया पैदल पैदल पैदल, बिकॉज देयर वाज नो ट्रैफिक, एंड ऑन द वे बैक बिकॉज देयर वाज नो पुलिस, आई गॉट मग्ड बाय रैंडम गाइज। गन थी, ठीक है, लेकिन दे वर नॉट प्रोफेशनल। मैंने बोलेगा कोई नो बडी इज़ वॉचिंग, लेट्स डू इट। तो मैं वहाँ से लौटने के बाद जब थाने गया तो उसी तरह का इंस्पेक्टर था कि आप बाहर क्यों निकले हुए थे, अच्छा आप काम क्या करते हैं, मैंने जी मैं ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हूँ, अच्छा आपकी सैलरी कितनी है, मैं रिश्ता लेने नहीं आया, आप सैलरी क्यों पूछ रहे हैं। ही वॉज डिटर्मिनिंग कि इससे पैसे कितने निकल सकते हैं। सो व्हेन आई सेड दैट, तो देन उसका कह रहा है सर गाड़ी में डीजल ही नहीं है, कैसे जाएँ हम बंदे पकड़ने, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। तो आप एक काम करें, घर जाएँ, और अच्छा है आपने रिपोर्ट करा दी, अब आपकी सिम जो है ब्लॉक हो जाएगी और आप घर पे आराम करें, 2-3 दिन घर से ना निकलें। ये पुलिस ने मुझे कहा था, और वो दिन है, आज का दिन है। आई हैव नेवर गॉन टू पुलिस फॉर एनी कंप्लेंट। देर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ अदर इंसिडेंट्स, आई हैव नेवर बिन देयर। मैं यार आपस में सॉल्व हो सकता है तो कर लो, वहाँ जाने से तो और ही यू इन्वॉल्व अनदर पार्टी कि अब इसको भी डील करना है, इट बिकम्स अ पेन। तो पुलिस काम ही ऐसा करती है कि आप दोबारा कभी आओ ही ना। 2008 से 2024 का आधा हो गया है, 16 साल में आई हैवंट बिन, आई ओनली बिन वंस, वो जब आपने मतलब घर शिफ्ट करते हो तो आपको ऑफिस शिफ्ट किया था, तो वो रिपोर्ट करने गया था कि जी आई एम द न्यू टेनेंट और ये वो दैट्स इट। वो रजिस्ट्री के लिए गया था, किसी शिकायत के लिए तो अल्लाह माफ़ करे। हाँ, अब मैं जाऊँगा, आई विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली बिकॉज नाउ आई एम समबडी ऑन सोशल मीडिया, और मेरी एक वॉइस भी है, मेरा एक चैनल भी है, मुझे DSP IG DIG भी जानते हैं, तो मैं वहाँ से भी फ़ोन करवा सकता हूँ, मगर मैं फिर भी नहीं जाता। मगर ये कि आई विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली नाउ। सो पाकिस्तान में, इंडिया में, मैं हमेशा यही कहता हूँ, प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज स्टे देयर, यू नीड टू बी एबल टू बाय आउट दोज प्रॉब्लम्स। सिक्योरिटी का इशू है, वर्क योर एस ऑफ कि आप बड़ी गाड़ी रख लो, 4 सिक्योरिटी वाले रख लो, सिक्योरिटी ऑप्शन इशू ख़त्म हो गया आपका, राइट। आप कोई मग नहीं कर सकता। वंस यू हैव अ लाइक 4 व्हील ड्राइव, पीछे 2 गार्ड बैठे हो, कौन आएगा आपसे मोबाइल छीनने, कभी भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सो यू नीड टू बाय आउट दोज प्रॉब्लम्स। पानी नहीं आ रहा, टैंकर डलवा लो, गैस नहीं आ रही, या बिजली नहीं है, 20 लाख का सोलर लगवा लो, या बड़ा 5 kV का जनरेटर लगवा लो, प्रॉब्लम सॉल्व मैन, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। सो इसलिए एलिट यहाँ पे खुश है, क्योंकि एलिट ने प्रॉब्लम्स बाय आउट कर ली हैं। पुलिस क्या, जज खरीद लिया है, क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। सो दैट्स द वे यहाँ पे। सो ये जो थप्पड़ वाला है इंसिडेंट, आई एम ग्लैड यू शेयर्ड इट, एंड आई होप लोग इससे कुछ सीखें। बट वही वाली बात है, जब तक नीचे वाला दबता रहेगा, ऊपर वाला दबाता रहेगा, जब तक वो आवाज़ नहीं निकालेगा। लेकिन वही वाली बात है ना, आवाज़ निकालेगा अपनी मुसीबत, जड़ा बोले वही कुंडा खोले। तो ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन एन एक्सट्रीमली इनइक्वल सोसाइटी, जहाँ पे पीपल कैन फक ओवर एनीवन विदाउट एनी रिपरकशंस। ये तो फिर एक चमाट था, पोर्शा वाला केस आपके सामने है। इमेजिन वो हाईलाइट नहीं हुआ होता, या वो 15 साल पहले हुआ होता, प्री इंटरनेट, कुछ भी नहीं होना था। आपको लगता है ऐसे वाक़यात नहीं होते रहे? स्कॉर्पियन ने नहीं मारे होंगे बंदे, कितने मारे होंगे, मगर वो नहीं रिपोर्ट हुए बिकॉज देयर वाज प्री इंटरनेट। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट बिकॉज
किसी का फ्यूडल बैकग्राउंड होता है या किसी का हाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, तो वो चीज़ें हाईलाइट नहीं हो पाती, हाईलाइट होती भी हैं तो इतना उस पर एक्शन नहीं होता. सो द पॉइंट ऑफ दिस एंटायर शो इज़ कि जो हो गया अब इस जनरेशन को हम शायद चेंज नहीं कर सकते. दे आर नॉट इवन विलिंग टू लिसन और एक्नॉलेज. एक्नॉलेजमेंट बहुत बात की चीज़ें, तो बैठ के सुनना भी नहीं चाहते कि अंकल जी आपने ये हरकत गलत की. सो वी नीड टू वेट आउट टिल दे ऑल डाई. बाकी है कि हम लोग जो हैं या हम में से जितने लोग सुन रहे हैं, वी शुडंट बी दीज पीपल. आई यूज टू लुक एट माई ओन फादर. देयर वॉज अ लॉट ऑफ लैकिंग इन टर्म्स ऑफ हिज रोल. और सो मैं हमेशा ना यही सोचता था कि यार आई डोंट लाइक every father is a superhero, and of course I look up to him and I've learned a lot from him. I still regard him, I give him respect, every sort of respect that he deserves, and I love him to bits. At the same time there was some lacking from him, and I just used to think, hey, I don't want to be this person. I really like him for what he is, but then ये जो चीज़ है ना, मुझे ये नहीं बनना. तो इससे हम यही सबक सीख सकते हैं कि what we're looking around in our society, in our own relationships, in our own household, let's just all pray that we don't become those people and we break this cycle, we break this chain. That's the whole point. हम कोई यहाँ सोसाइटी चेंज करने नहीं बैठे हुए. मेरी बातों से सोसाइटी चेंज नहीं हो सकती. एक इंडिविजुअली हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है. तो दैट इज़ एटलीस्ट ब्रेकिंग द चेन ऑफ अ होल जनरेशनल. एक तो जनरेशनल वेल्थ नहीं मिलती हमें, जनरेशनल हेल्थ भी नहीं मिलती हमें, जनरेशनल ट्रॉमा ही मिलता है सिर्फ. एटलीस्ट वो चेन तो ब्रेक कर सकते हैं ना. So that's the whole idea of this show, and of course, listening to people. So I hope we get to be able to call these people out there and then. कि आपने गलत हरकत की है, आपने जुल्म किया है, कहीं तो थोड़ी शर्म दिलाने की कोशिश की जाए. And we should. Why not? So it's very unfortunate that this happened, but please, जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके सामने इस तरह का कुछ हो, प्लीज़ वॉइस मेक अ वॉइस अबाउट इट, स्पीक अबाउट इट एंड वॉइस योर कंसर्न. आप बोल दें कि यार ये मैंने देखा है और आपने ये गलत किया है, आप ये नहीं कर सकते. दैट्स इट. इतना ही बोल लो. वो उस वक्त अपनी ईगो में नहीं मानेगा, वो बोलेगा नहीं तुम हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें क्या पता, तुम बच्चे हो, दिस दैट. बट रात को सोने से पहले वो सोचेगा ज़रूर कि यार मुझे आज तक किसी ने रोका नहीं था. वाई डिड दैट गर्ल कम टू मी. जैसे मुझे क्यों बोला, उसके पीछे क्या सोचती. मे बी इट ट्रिगर्स अ न्यू थॉट, क्योंकि वो कभी उससे गुजरे ही नहीं ना. इट्स लाइक अ हॉट गर्ल हुज नेवर हर्ड नो. उसके लिए सबने दरवाज़ा भी खोला है. शी इज़ गॉटन हर वे ऑल द टाइम. यू नो वाई शी इज़ आफ्टर द गाय हु डजंट गिव अ फक. इट्स लाइक वाई इज ही नॉट गिविंग अ फक अबाउट मी. एंड दैट्स हाउ शी गेट्स आफ्टर दैट गाय. सो वही इसी तरह हमें इनको भी ट्रीट करना है कि यार मुझे तो आज तक किसी ने गलत कहा ही नहीं, क्या मैं गलत हो सकता हूँ. यू नो वो थॉट ही प्लांट कर दो एंड लेट देयर माइंड स्क्रू देम ओवर फॉर लेटर ऑन. खैर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट हैपेंड, बट बहुत बहुत बधाई आपकी कज़न की शादी पे एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर देम. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, देखा, इस खुशी के मौके पे किसी के साथ इस तरह की ज़्यादती करना, यार उसने ट्रम्पेट वाले ने ट्रम्पेट नहीं बजाया, लेकिन उसके दिल से जो आवाज़ बजी होगी ना, जो उसने बद्दुआ दी होगी, दैट्स नॉट अ गुड थिंग. आई विल शेयर अ वाकया विद यू ऑल. मेरी बिल्डिंग में, पुराने मोहल्ले में, दे यूज्ड टू बी, दे स्टिल इज़ दिस मेमन फैमिली. एंड मेमन्स आर नोटोरियस फॉर नॉट स्पेंडिंग मच. सो उनके घर में शादी थी. तो एक ट्रांसजेंडर आया. जैसे कि ये लोग शादी ब्याह की इनको रिपोर्ट हो जाती है कि यहाँ पे शादी हो रही है, तो वो पैसे मांगने आया कि आपके घर में खुशी का मौका है तो हमें पैसे दो. सो दी अंकल, ही पुश्ड द ट्रांसजेंडर और वो सीढ़ियों से गिरता हुआ गया. एंड माई ओल्ड बिल्डिंग 1927 की, इट्स कॉल्ड लक्ष्मी चंद बिल्डिंग. लक्ष्मी चिट फंड नहीं, लक्ष्मी चंद बिल्डिंग. तो वो लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, तो उस पर रोल होता हुआ वो गिरा ट्रांसजेंडर. एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग दिल से, और उसने उसको बद्दुआएं दी कि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए. एंड इवेंचुअली ऑल हिज किड्स गॉट डिवोर्स्ड. एक की तो 2 बार हुई, बेटे की, एक बेटा पास्ट अवे बिकॉज वो गुटखा खाता था, माउथ कैंसर हो गया. द डॉटर गॉट डिवोर्स्ड. मतलब वी सॉ, कुछ भी हुआ ना उधर, all of us who witnessed that, या जिनको पता चला उस वाक़े के बारे में, we all linked to that one moment
कि यार उसने उसकी बद्दुआ ली थी, वो वैसी मार्जिनलाइज्ड है, उनकी सोसाइटी में कोई वर्थ नहीं है, दिल उनका भी है, अल्लाह उनके लिए भी है, अल्लाह ने ही उनको बनाया है, तो किसी की बद्दुआ नहीं लेनी होती। और ख़ास तौर पे इतने बड़े मौके पे, खुशी का मौका है, खुशी है यार, ट्रम्पेट नहीं बजा रहा था, मुंह पे मिठाई भर देता उसके यार, क्या ही हो जाता, कितने ही पैसे ले गए। 500 से ना आपका कोई साउथ दिल्ली में घर बनना था, ना उसका कुछ बनना था 500,000 से, बिला वजह की। तो ऐसे मौक़ों पे कभी भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। आई लिव नेक्स्ट टू एन इलीगल शादी हॉल। कल रात को मैं सो गया था जल्दी और मैं 3 बजे उठा बिकॉज कवाली हो रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से दड़ हो रहा था, मेरी आँख खुल गई। एंड देन आई नेवर स्लेप्ट टिल 9 in the morning। मुझे यहाँ दोपहर को आके एपिसोड शूट करना था। माई गाय वॉज हेयर। मैं 2 घंटे बाद आया बिकॉज आई ओवर स्लेप्ट, बिकॉज आई नेवर स्लेप्ट इन द एंटायर नाइट। तो अब मेरे दिल से बद्दुआ नहीं निकलेगी या गालियाँ नहीं निकलेंगी कि यार मतलब ठीक है, इट्स अ गुड ओकेजन फॉर यू बट इट्स नॉट माई ओकेजन। मेरी तो रात 3 बजे नींद ना ख़राब करो, 12 बजे ख़त्म करो, चले जाओ घर। बढ़िया, कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। लोग अपनी खुशियों में बद्दुआएं समेटते हैं। तो जब आपका खुशी का दिन लोगों की बद्दुआओं से शुरू होगा, तो वो शादी, वो सालगिरह, वो अकीका, वो वलीमा, वो कैसे लॉन्ग लास्टिंग होगा? वो कभी भी नहीं हो सकता। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी माइंडफुल। अक्सर शादियों के बाहर आई हैव सीन, ये जो बच्चे होते हैं या लड़के होते हैं, वो टॉयज़ बेच रहे होते हैं, राइट। और वो मुझे याद है व्हेन माय एल्डेस्ट सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड, तो शादी हॉल के बाहर एक वो था, उसके पास वो टॉय गन थी रैम्बो वाली। तो मैंने पूछा ये कितने की है? कह रहे मैं पैसे नहीं लूँगा, मुझे 2 रोटी और 2 कबाब ला दो। तो मैंने ठीक है। तो मैं अंदर गया, मैंने खाना तो अपना ही था, मैंने उसको पैक किया, मैंने दे दिया। उसने मुझे वो गन दिखा के दूसरी गन दे दी, ख़राब वाली। तो खैर, तो ये अक्सर लोग होते हैं, इनको अगर आप 2 रोटी भी खिला दें तो क्या ही चला जाएगा आपको। वैसे ही आपने हमारे RSVP का तो लोगों को मतलब ही नहीं पता ना। तो वो शादी कार्ड 200 लोगों को भेजा है तो 400 का खाना मंगाते हैं कि पता नहीं या तो 200 आएंगे या 600 आएंगे, ज़्यादा हो जाए कम ना हो, तो उसमें खाना ज़ाया होता है, खाना फेंकता है। देयर इज़ अ रॉबिन हुड आर्मी यहाँ पे जो हु कलेक्ट्स ऑल दीज लेफ्ट ओवर एंड देन दे गिव इट टू ऑर्फनेजेस। वंडरफुल वर्क। तो उनको दे दें। अगर आप उनसे पार्किंग में लड़ेंगे कि तू यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, तू बदसूरत आदमी, गरीब आदमी, तू यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे इतने प्रेस्टिजियस गेस्ट आ रहे हैं, आप उसको गालम गलोच करोगे, मारोगे। या अक्सर वो लोग होते हैं, उनके किसी के हाथ में बंदर होता है, किसी के पास क्या होता है, आप उनके साथ गालम गलोच करोगे। वो गरीब है, वो उसका लाचार है, उसके पास शायद सोने को छत भी नहीं है, और आपका खाली डिनर जो है वो पर हेड जो है वो 2,000 रुपये का है। तो लाइक ये वॉर इक्वल वॉर नहीं होने, तो इसराइल फ़लस्तीन हो गई ना, कि एक तरफ आपके पास आयरन डोम है, दूसरे के पास जो है ना वो डेविड एंड गोलायत वाली गुलेल ही है उसके पास। इट्स एन अनफेयर वॉर। सो कुछ ना करें, यू कैन रिस्पेक्टफुली आस्क देम कि आप थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, यहाँ से ख़वातीन ने आना है, लेडीज़ ने आना है, उनको खाना दे दो, बाहर बैठ के खा लें आराम से, वगैरह वगैरह। डू नॉट कलेक्ट बद्दुआएँ, वरना आपका जो है ना ये घर बिगड़ते हुए देर नहीं लगती। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जी। आई थिंक ऑल रिलीजन्स टॉक अबाउट इट, स्पिरिचुअलिटी टॉक्स अबाउट इट। अगर आपने एक शुरुआत ही नेगेटिव एनर्जी से की है तो वो डेफिनेटली बाउंस बैक करेगी आपके, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। नीड टू बी पॉजिटिव इनसाइड। अपने आप को अच्छा करोगे, दुनिया अच्छी हो जाएगी। अपने आप को इस तरह रखोगे कि मैं उसको भी चमाट मार रहा हूँ, गाड़ी उसको मार रहा हूँ, उसको गाली दे रहा हूँ, उसको नशे में ये कह रहा हूँ, it'll come back haunting for you. So make sure you don't do this and don't ruin occasions for other people. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।